So today we'll discuss about neurological examination. It is very essential in our psychiatric or mental health nursing to detect any neurological disorder or impairment in our nervous system. So how we'll assess somebody's mental status, somebody is having any neurological disorder or not, rather any disability, impairment or not in nervous system. So how we're gonna assess? Suppose a patient is coming in a mental hospital with some mental disorder, okay, that will diagnose after the later signs and symptoms. So how are we gonna diagnose? First, we have to assess the patient's state. We have to assess his motor neurons, sensory neurons, as well as her reflexes. So this is actually basically about the neurological examination that nurses used to do in a psychiatric hospital on mentally disabled patients. So here, a girl of BSc Nursing third year, we're gonna suppose her as a patient or a client. So what are the objectives of neurological examination? Why are we supposed to do? पहला तो ये है कि हमें पता लगाना है कि उसमें कोई बीमारी है कि नहीं. We used to detect or determine any neurological disorders in her nervous system. Secondly, आप केयर कब देते हो? जब कोई इलनेस या डिजीज डायग्नोज हो जाता है. To provide care or to identify the type of care you have to give to your patient. जो केयर आपने पेशेंट को देनी है, that type you have to identify first. Okay? So near about there are most of all 5 or 6 components occurs in neurological examination. First one is level of consciousness. Second one, उसका communication, mental status examination. Okay? Then cranial nerves, पढ़ी होंगी शायद आपने. Cranial nerves. Then sensory functions, motor functions, cerebellar functions, and then at the end reflexes. Clear? So first, how will assess the patient's consciousness? She is sitting, alert, active, cooperative. ठीक है? So she is conscious. She is fully conscious because she is able to respond to your questions. So her level of consciousness is full. She is alert or active. Or in coma patients, how are you gonna assess? Glasgow coma scale. So this procedure we'll discuss later in classes. Okay. Now we're going through the neurological. Second one, level of communication. Level of activity. Okay. There are 3 phases. That is cerebral. First, agnosia, एप्रेक्सिया, एफेसिया. एग्नोशिया हम कैसे पता चलाएंगे पेशेंट में? कोई क्वेश्चन करके, जैसे मैं क्वेश्चन करूंगी एग्नोशिया में, एप्रेक्सिया में, एफेसिया में. मैंने फॉर एग्जांपल आई हैव समथिंग दैट पेन. आई आस्क हर टू रिकॉग्नाइज. शी विल टेल पेन. आई आस्क हर व्हाट इज दिस. शी विल टेल कॉपी. ठीक है. सो इफ अ पेशेंट इज अनएबल टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट्स, कि उसको पता नहीं है ये क्या चीज है, उसको ये पता नहीं है ये क्या चीज है, then her consciousness, inability to recognize or agnosia, impaired. Okay. Next is apraxia. I told her something to do and she is unable to do her activity. मैंने इसको बोला कि अपने स्लीव्स ऊपर कर लो, अपनी स्लीव्स ऊपर कर लो. She immediately did that. ठीक है. She is able to do. Next is aphasia. Aphasia means unable to respond or unable to communicate. मैं इससे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगी, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो. She is able to respond. Clear है ये? So this is the assessment of the cerebral functions. Clear? Next आती है हमारे पास cranial nerves. अब क्रेनियल नर्व्स एसेस करने के लिए हमारे पास ट्रे होती है, द ट्रे कंटेनिंग आर्टिकल्स. ठीक है. कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं? 12. ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक्स, ओक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंट, ट्राइजेमिनल,
facial nerve, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus nerve, hypoglossal and SSC. Clear? अब मुझे इसकी olfactory nerve के बारे में पता लगाना है कि उसकी sensations कैसे हैं एक्चुअली. सो क्या करोगे? उसका स्मेल, उसका टेस्ट. फर्स्ट यू आस्क द पेशेंट टू क्लोज हिज आईज. जो भी तुमने कुछ उसको देना है, ठीक है, वो एक्सपोज नहीं करना है तुमने उसे, कि तुमने पहले उसके सामने रख दिया तो उसको पता चल जाएगा. ठीक है, आस्क द पेशेंट टू क्लोज हिज आईज. ठीक है, अब जैसे ये पेशेंट है, आप अपनी आंखें बंद कर लो. ठीक है, मैं आपको कुछ नाक के आगे रखूंगी. ठीक है, आपको उसको सूंघ के बताना है कि एक्चुअली में वो क्या चीज है. ठीक है, जस्ट क्लोज योर आईज. ऐसे इस तरफ को, हाँ ऐसे. जस्ट आस्क हर टू क्लोज हर आईज एंड क्लोज वन नोस्ट्रिल विद वन फिंगर. ऐसे एक नोस्ट्रिल से अपना एक नाक बंद कर लो. एंड secondly you have to keep this space in the other nostril. ठीक है, क्या है ये? ठीक है, okay. So her olfactory senses are working. So this has to be repeated in other nostril also. Clear? This is olfactory. अब स्मेल करने के लिए नहीं, तुम उसको टेस्ट करने के लिए भी दे सकते हो. ठीक है, कुछ उसको जो भी है, जैसे तुमने कुछ रखा है, सेम तुम उसको, जैसे चीनी है, तुम चीनी उसको दे दो, पर उसको बताना नहीं है कि उसको तुमने दिया क्या है टेस्ट करने के लिए. जस्ट यू हैव टू चेक द सेंसेस. क्लियर? दिस कम्स इन विद olfactory senses. नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिक. इधर आ जाओ, इस साइड हो जाओ. ऑप्टिक में तुम क्या उसकी विजुअल एक्यूटी चेक करोगे, कलर विजन चेक करोगे और विजुअल फील्ड चेक करोगे. विजुअल एक्यूटी में तुम कुछ भी उसको न्यूज़पेपर दे सकते हो, मैगजीन दे सकते हो. स्नेलर चार्ट तुम्हें पता ही होगा, वो सामने लगा है. ठीक है, पेशेंट क्या करेगा? क्लोज हिज आईज, अपनी एक साइड से बंद करो और दूसरी साइड से उसको रीड आउट करने की कोशिश करेगा. ठीक है, एंड दिस स्टेप हैज टू रिपीटेड टू द अनदर आई आल्सो. दिस क्लियर? और तुम कैसे दे सकते हो? जस्ट आस्क हर टू रीड दिस. ये रीड कर लो. ठीक है, अगर प्रॉपर्ली रीड करते हैं तब उसके सेंसेस वर्किंग में. क्लियर है ये? और उसकी कलर विजन कुछ भी पूछ सकते हो. द डिफरेंस इन कलर्स, ये कौन सा कलर है, रेड है, ऑरेंज है. क्लियर? थर्ड हमारे पास आती है ऑक्यूलोमोटर. ऑक्यूलोमोटर में क्या करेंगे? ऑक्यूलोमोटर, एब्ड्यूसेंट और ट्रोक्लियर. ये जो तीनों नर्व्स हैं, ये स्पेशली हम आई मूवमेंट्स के लिए करते हैं, आई मसल्स को असेस करने के लिए करते हैं. सो ये ऑक्यूलोमोटर मैं करके बता रही हूँ. जस्ट सी, ये पेन है. ठीक है, मैं इसको जैसे जैसे डायरेक्शंस में लेके जाऊंगी वैसे वैसे आपको इसको देखना है. तो आपने क्या करना है? इसको एच शेप में लेके जाना है. ठीक है, ऐसे हेड नहीं हिलाना, अपना सिर नहीं हिलाना. ठीक है, सिंगल इमेज थी तो इसमें आप डिप्लोपिया भी चेक कर सकते हो कि कहीं पेशेंट को पूछ सकते हो आपकी उसको कहीं डबल इमेज तो नहीं दिख रही. तो उसके तुम आई मसल्स देख सकते थे, मूवमेंट बिल्कुल क्लियर था. ठीक है, दिस वन वाज ऑक्यूलोमोटर. दूसरा आता है हमारे पास ट्रोक्लियर. ट्रोक्लियर में क्या करते हैं? ट्रोक्लियर में क्या करते हैं? जैसे तुम्हें आई मसल्स तो पड़े हैं. ठीक है, एनाटॉमी में आई मसल्स जो होते हैं हमारे सुपीरियर रेक्टस हो गया, लेटरल रेक्टस हो गया और डाउनवर्ड रेक्टस हो गया, वो ये आपको करके दिखाएगी. ठीक है, तो हम इसमें आई मूवमेंट की मसल्स को चेक कर सकते हैं. ऐसे देखो, ऊपर नीचे देखो, साइड में देखो, इस साइड, ऐसे ऐसे. तो ऐसे ऐसे पेशेंट को देखने के लिए हम आई मूवमेंट्स का पता लगाते हैं इसमें. एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास एब्ड्यूसेंट. एब्ड्यूसेंट में सेम वैसे ही हमने कोई फिंगर ले लो, ठीक है, या पेन ले लो, उसको ऑल क्वाड्रेंट्स में दिखाना है बट विदाउट मूविंग योर हेड. क्लियर? दिस ये सारी हम तीनों जो करते हैं ये सिर्फ इसलिए करते हैं आई मूवमेंट्स को चेक करने के लिए, असेस करने के लिए. क्लियर है? नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्राइजेमिनल. ट्राइजेमिनल में कुछ भी ले लो, जैसे क्लोज, पेशेंट को बोलना है अपनी आंखें बंद करो, जस्ट क्लोज योर आईज. ठीक है, उसके बाद कोई भी सेंसेशन तुम उसको उसके दे सकते हो या पूछ सकते हो मैंने कहाँ टच किया.
मैंने आपको अभी कहाँ टच किया, ठीक है, या फिर तो जस्ट वी हैव टू चेक द सेंसेस। और सेकेंड हम एक और चीज कर सकते हैं ट्राइजेमिनल में, आई विल पुश हर मैंडिबल, ठीक है, शी विल मेक सम फोर्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। मैं इसको वैसे ही समझाऊंगी, ठीक है, पेशेंट है, मैंने ऊपर को फोर्स लगानी है और आपने नीचे को लगानी है, ठीक है। दिस टू चेक अ मैंडिबुलर स्ट्रेंथ, ये हम ट्राइजेमिनल लॉब में करते हैं। हम फोर्स लगाएंगे ऊपर को एंड आस्क कर द पेशेंट टू फोर्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट आती है हमारे पास फेशियल नर्व्स। फेशियल नर्व्स किस लिए करते हैं? मोस्टली एक्सप्रेशंस को चेक करने के लिए। फेशियल पाल्सी तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है फेशियल, ठीक है। सो वील आस्क द पेशेंट टू ब्लो माउथ, एनी कोई फेशियल एक्सप्रेशन पेशेंट को बोल दो, रेज योर आईब्रोज, रेज योर आईब्रोज, ठीक है, हंस के दिखा दो, विसल कर दो, ठीक है। दैट ऑल फेशियल एक्सप्रेशंस कम्स इन अ फेशियल नर्व। क्लियर है ये? उसके बाद आता है हमारे पास वेस्टिबुलोकॉक्लियर। इसमें हम दो टेस्ट करते हैं, रेनिस टेस्ट और वेबर्स टेस्ट। ये दोनों टेस्ट हम हेयरिंग लॉस के लिए करते हैं, वेदर द पेशेंट इज एबल टू हेयर द बोथ द एयर्स इक्वली और नॉट, ठीक है। फर्स्ट आता है रेनिस टेस्ट। फर्स्ट वी हैव टू शेक दिस एंड देन वी हैव टू अप्लाई दिस नियर द मेस्टोइड प्रोसेस। ये जो कान के पीछे ये है ना, इसको बोलते हैं मेस्टोइड प्रोसेस, ठीक है। वी हैव टू जस्ट शेक and then place near the mastoid process. We'll ask the patient whether he is able to hear or not the vibrations of the tuning fork. This thing we have to repeat same in the another ear. Clear? Yes, this was the Renner test. Next आता है Weber's test. Same thing repeat करनी है हमें, vibrate करना है, ठीक है। And next we have to keep here center of the head or center of the forehead to assess whether the patient is hearing with the both is equal or not, just to check the hearing loss. Clear? Yes. This was the vestibulocochlear nerve. अगली आती है हमारे पास ग्लोसियोफेरेंजियल। अब ग्लोसियोफेरेंजियल में सिंपल सी चीज है, पेशेंट को बोल दो एनगल्फ करने के लिए, स्वेलो करने के लिए, ठीक है। कोई पानी दे दो, वो पानी पी के तुम्हें बताएगा टू चेक वेदर इज एनी डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। क्लियर? नेक्स्ट है वेगस नर्व। वेगस नर्व में विल आस्क द पेशेंट टू कफ, खांस के दिखाओ, ठीक है। और विद द टॉर्च लाइट आप पेशेंट को बोल सकते हो आ करने के लिए, आ करो, आ करो, आ विद, ठीक है। तुम ट्यूब लाइट के साथ, पेन लाइट के साथ देख सकते हो कि उसका जो यूविला है वो सेंट्रली लोकेटेड है या नहीं है। कई बार क्या होता है, जो यूविला होता है वो सेंट्रली लोकेट नहीं होता है, डिस्प्लेस होता है अपनी जगह से। तो ये ऐसी सब चीजें आप वेगस में चेक कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है एसेसरी। एसेसरी में आप स्टर्नोक्लीडो मसल्स जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो। जैसे ये पेशेंट है, ठीक है, मैं इस पेशेंट को बोल रही हूँ, मैं आपको फोर्स लगाऊंगी, ठीक है। यू हैव टू, मतलब आपको फोर्स लगानी है ऊपर को अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। सो ये एबल टू है, ठीक है, एबल टू मेक फोर्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। ये इसकी स्टर्नोक्लीडो मसल्स हैं स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। क्लियर? और तुम क्या कर सकते हो, आस्क द पेशेंट टू श्रब द शोल्डर मसल्स और मूव हिज हेड लेटरल। अपना सर मूव करना है, ठीक है। मैं यहाँ जोर लगाऊंगी, आपको अपना सर ऐसे ऐसे साइड साइड मूव करना है। करो, उसको कोई पेन नहीं हो रहा है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है नॉर्मल। क्लियर? मतलब जो एसेसरी है ना हमारी एसेसरी नर्व, उसमें हम मसल स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल में हम ट्रेमर्स का पता लगाते हैं। जैसे हम पेशेंट को बोलेंगे अपनी जीभ बाहर निकाल के दिखाओ, ऐसे करो, थोड़ी देर के लिए इसको बाहर ही रखना है। तो विल ऑब्जर्व द टंग वेदर द पेशेंट टंग इज ट्रेमरिंग, ऐसे से हिलती है ना जीभ, ट्रेमर्स, ठीक है। तो ये हम हाइपोग्लोसल नर्व में चेक करेंगे, असेस करेंगे। दीज ऑल वर दी क्रेनियल नर्व्स। कौन कौन सी थी? फर्स्ट वाज दी ऑल्फैक्टरी, ट्राइजेमिनल, फेशियल नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर,
वेगस, ग्लोसोफेरिंजियस, क्लियर। नेक्स्ट आती है हमारे पास मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शंस में क्या है, पेशेंट को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए बोल दो, मसल्स की एक्टिविटी, क्योंकि हमें मसल्स की स्ट्रेंथ, टोन और स्ट्रेंथ पता लगाना है, ठीक है। तो फ्लेक्शन करो, मतलब ऐसे फ्लेक्शन करवा लो, एबडक्शन, एडक्शन या फिर विड्रॉल करवा लो, ऐसे करो, या कोई भी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवा दो, ठीक है। ऐसे कर लो, ऐसे करो, ठीक है, नॉर्मल है। सो ये तो, या तुम चल के भी इसको पेशेंट को बोल सकते हो कि थोड़ा सा चल के दिखाओ स्ट्रेट लाइन में। ये सारी जो मसल की एक्टिविटीज हैं ये करवानी है। ये किस में आएगा हमारे पास, मोटर फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास है सेंसरी फंक्शंस। सेंसरी फंक्शंस में हम हॉट एंड कोल्ड कर सकते हैं, या कोई पॉइंट, ठीक है, पिन या फिर कॉटन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये ऐसे किया था, उससे पूछा था कि आपको कहाँ पे टच किया मैंने, ये आ सकता है। या कोई तुम टेस्ट ट्यूब में थोड़ा गर्म या ठंडा पानी करके रख सकते हो। विल टच विद द पेशेंट एंड आस्क कि कैसा लग रहा है आपको, ठंडा लग रहा है या कोल्ड लग रहा है। देन पेशेंट्स विल टेल अबाउट दिस सेंसेस। ये मेनली हम सेंसेस का असेस करते हैं, जो उसके सेंसरी न्यूरॉन्स है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेरेब्रल फंक्शंस। सेरेब्रल फंक्शंस में हम क्या चेक करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। अब कोऑर्डिनेशन और बैलेंस कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट करते हैं हम फिंगर टू फिंगर टेस्ट, फिंगर टू नोज टेस्ट, रोम्बक टेस्ट एंड टाइमबक वॉकिंग टेस्ट। अब मैं जैसे तुम्हें बोलूंगी वैसे करना है, ठीक है। ऐसे करो, फिंगर टू फिंगर टेस्ट, दिस इज द फिंगर टू फिंगर टेस्ट। कई जो पेशेंट्स होते हैं उनके हाथ कांपते हैं, ठीक है, तो वो कर नहीं सकते। या फिर तुम अपने साथ भी कर सकते हो, ये फिंगर को टच करो मेरी तरफ ऐसे करके, ऐसे उधर से ऐसे टच करो ना, ऐसे, हाँ, फिंगर टू फिंगर टच। फिंगर टू नोज, ऐसे करो, ऐसे ऐसे, दिस इज द फिंगर टू नोज टू असेस बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, क्लियर है। नेक्स्ट आता है, आप खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेंडन वॉकिंग टेस्ट। इट इज यूज्ड टू असेस द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इन मेंटली डिसेबल्ड पर्सन्स, ठीक है। विल आस्क द पेशेंट टू स्टैंड विद द स्ट्रेट हैंड्स साइड फॉर 10 सेकेंड्स। जस्ट क्लोज योर आईज, आप अपनी आंखें बंद कर लो और 10 सेकेंड तक बस ऐसे खड़े रहना, ठीक है। सो दिस इज अ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन विच कम्स इन अ रोम्बक टेस्ट। ये हमारा रोम्बक टेस्ट है। इसके क्या करते हैं, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए करते हैं। पेशेंट को बोलना है सीधे खड़े होने के लिए, आंखें बंद करने के लिए, 10 सेकंड के लिए बिल्कुल स्ट्रेट, क्लियर है। नेक्स्ट आता है टेंडम वॉकिंग टेस्ट। विल आस्क द पेशेंट टू वॉक ऑन टोज, ठीक है। हम कैसे चलेंगे, बिल्कुल टोज के ऊपर एंड स्ट्रेट। It is just to check the gait or balance or coordination. Clear है this? Cerebral functions. पहला क्या था हमारे पास, फिंगर टू फिंगर टेस्ट, फिंगर टू नोज टेस्ट, रोम्बक टेस्ट, you have to stand straight with closed eyes, and last tandem walking test means we have to walk on our toes. किस लिए करते हैं, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए, क्लियर है। कोई डाउट है किसी में? थैंक यू।